वेलकम एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आई एम मोनी, योर होस्ट फ्रॉम टीम अलीपो एंड वी आर रेडी टू स्टार्ट विद आवर न्यू बैच ऑफ हेल्दी बेकिंग विद ऑल ऑफ यू। मैं मोनी आपकी होस्ट टीम अलीपो से और आज हम शुरुआत कर रहे हैं हेल्दी बेकिंग बैच आप सभी के साथ। सो लेट मी गिव यू अ शॉर्ट इंट्रो ऑफ अलीपो। We are an upskilling academy wherein providing instructor-led life courses in different categories like baking, makeup, cooking, and many more. And we have already trained almost 3 lakh plus women so far. हम एक अपस्किलिंग एकेडमी है जहाँ पे प्रोवाइड करते हैं इंस्ट्रक्टर लेड लाइव कोर्सेज जैसे कि बेकिंग, मेकअप और बहुत कुछ। हमने ट्रेन किया है ऑलमोस्ट 3 लाख प्लस वुमेन को। एंड बिफोर स्टार्टिंग विद आवर सेशन लेट मी टेल यू फ्यू गाइडलाइंस। सेशन शुरुआत करने से पहले मैं कुछ गाइडलाइंस बताना चाहूंगी। We will be translating in both the languages Hindi and English for everyone's convenience. हम दोनों लैंग्वेज में बोलेंगे, हिंदी का ही इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। We will be enabling the Zoom chat to take up your queries after all the process is completed. हम Zoom chat enable करेंगे आपके queries लेने के लिए सारी process complete करने के बाद. And we have our admins in the group to help you out with all the process. हमारे admins group में आपको help करेंगे process में. And we have our chef Divya who has more than 10 years of experience in baking and she is expert in baking, chocolate making, Indian, Oriental, Italian and Mexican cuisine. तो यहाँ पे हमारे शेफ दिव्या जिनके पास ऑलरेडी 10 साल के ऊपर का एक्सपीरियंस है एंड बेकिंग में एक्सपर्ट है। बेकिंग ही नहीं बट चॉकलेट मेकिंग, इंडियन, ओरिएंटल, इटालियन और मेक्सिकन क्विजीन्स में भी। So, Chef Divya, क्या आप आपका छोटा इंट्रोडक्शन दे सकते हैं प्लीज? So hi everyone. So I'm Divya, Divya Kanwar Chauhan after marriage. मैं basically Shimla से हूँ, so I'm from Shimla and I have learned everything over many years. Basically जो baking है वो मैंने अपने grandfather से inherit करा है because he learned it from his uh, father who learned it during the British time. तो मेरी literally बहुत ही traditional recipes सीखी है मैंने उनसे, so I've learned a lot of traditional recipes. और भी काफी कुछ I have learned over the years and that's it. I quit my corporate job although uh, baking and इसका knowledge था but I was working in the corporate setup. लेकिन 3 years पहले मैंने अपनी corporate job से quit करी and I started my own business and I'm pretty happy with it now. That's really amazing story, Chef Divya, and we would love to get all the inspiration from you in our throughout session as well. So, guys, in today's session flow, in first part, we will learn about the tools requirement for baking, and then we will learn the ingredients replacement and process of making vegan special banana walnut bread and onion and herb bagels. Second part, we will learn on variation, shelf life, and selling price. And in third part, we will discuss on Zoom chat queries. तो आज के सेशन फ्लो में फर्स्ट पार्ट में सीखेंगे कि बेकिंग में कौन से टूल्स लगते हैं एंड उसके बाद सीखेंगे इंग्रेडिएंट्स रिप्लेसमेंट और प्रोसेस वेगन स्पेशल में बनाना वॉलनट ब्रेड और अनियन और हर्ब बेगल्स कैसे बनाते हैं। सेकेंड पार्ट में सीखेंगे वेरिएशन, शेल्फ लाइफ और सेलिंग प्राइस क्या होगा एंड थर्ड पार्ट में जूम चैट क्वेरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। So let's start ahead, Chef Divya. Absolutely. Hello everyone. Day one of our healthy baking. इस बारी हमने अपनी baking के module को 5 days में 5 categories में divide किया. So we've divided the module into 5 categories. Today's module is, as Moni said, vegan cooking. So vegan baking होता क्या है? Vegan होता क्या है? As everybody knows, vegan का मतलब है कि इसमें कुछ भी हमारा animal produce नहीं है. So we're not using anything that is derived from animals. That means no milk, no dairy, no butter, and no eggs obviously, and everything is plant based. मतलब हम आज सब कुछ वो यूज करेंगे जो हमारे पौधों में से आता है. So that is basically vegan. And before we begin with today's session, फटाफट से हम देख लेते हैं कि हमारे इक्विपमेंट्स का यूज करेंगे. Let's quickly look at the equipments. Very basic equipments that we're going to use. So the equipments are my spatula. ये है मेरे spatula. मेरे पास सिलिकॉन spatula है. ये यूज करने बहुत आसान होते हैं. बोल को साइड से अच्छे से स्क्रैप करता है. इसके edges sharp है. So the edges are sharp. So what it helps me with doing is cutting and fold method जो होता है उसमें बहुत help करता है. Then it helps me in the cutting and fold method. Then I have my
brush which I will need for glazing things, for putting on my glazes, ये glaze लगाने के help होगा. फिर मेरे पास यहाँ पे है मेरे measuring cups. I have my measuring cups. I use these steel based because they are nice and hygienic and easy to clean as well. So मेरे measuring cups हैं, ये मेरे measuring spoons हैं, and मेरा trusted hand beater. ये मेरा स्टैंड वाला हैंड बीटर है, ये सेपरेट भी हो जाता है जो हैंड बीटर होता है. अभी मैंने इसमें 2 हुक attachment लगाया हुआ है, so I've put the 2 hook attachment over here, but later on in other sessions we'll be using the whisk attachment. हम इसमें whisk attachment भी use करेंगे, and obviously हमारा whisk. So I have my whisk over here as well. So these are all the equipments that we will be doing. सिर्फ यही equipments है, बहुत basic equipments है मोनी हमारे, कुछ fancy नहीं है, सब आराम से हम यूज कर सकते हैं. ठीक है? All right. So yes. now let's start with our recipes. तो आपकी जो आज की recipes हैं वो है हमारी onion and herb bagels and our banana walnut bread. तो आज की जो हमारी है वो vegan है. Because this is vegan, so that is why in the banana walnut bread we are using flax seeds. तो हम अपने banana walnut bread में flax seeds यूज करें. बाकी के ingredients सब बाद में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी हम सबसे पहले अपने flax seeds को गर्म पानी में डाल कर रख लेते हैं. So before we proceed, let's add our flax seeds to our hot water. तो ये मेरे पास यहाँ पे है मोनी 1/4 cup of hot water. अगर हम दूसरे कैमरा पे जा सकते हैं. Yes, yes, absolutely. So I have over here 1/4 cup of hot water. 1/4 कप गर्म पानी है, और ये मेरे पास है 1 बड़ा चम्मच पिसा हुआ flaxseed powder. So I have 1 tablespoon of ground flaxseed powder, and what I am going to do now is that I will just simply add my flaxseed powder to the hot water and mix it well. फ्लैक्सीड पाउडर को मैंने गर्म पानी में डाल दिया है, और अब हम इसे साइड में 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे. तो फ्लैक्सीड को गर्म पानी में डालने से ये होगा कि ये फूल जाएगा और एक जेल की तरह बन जाएगा. सो व्हाट विल हैपन नाउ इज दैट इट विल काइंड ऑफ सोक अप ऑल द वाटर एंड बिकम लाइक अ जेल. ठीक है? तो अब इसके बारे में बाकी की बनाना ब्रेड के बारे में हम बाकी में बात करेंगे. अब हम बनाते हैं अपने onion and herb bagels. तो onion and herb bagels बनाने से पहले let me tell you bagels होते क्या है. तो bagels basically एक ब्रेड होती है जिसे हम स्पेशल तरीके से बनाते हैं. तो इस ब्रेड की ट्रीटमेंट में एक चीज डिफरेंट है आपकी नॉर्मल ब्रेड से. इसे हम प्रूफ करने के बाद, एक बार हम डो को प्रूफ करेंगे, फिर उसके बाद शेप करेंगे, सेकंड प्रूफ करेंगे, फिर इसे बेक करने से पहले हम पानी में पोच करते हैं. So what is the difference between a normal bread and your bagels is that once they are first proofed, the first proofing is done, then we shape them, then the second proofing is done, and then we poach them in a special water, and then we bake them. So that is what is the difference between a bagel and a normal bread. अब आप पूछोगे शेप तो bagels की डोनट जैसे होती है, तो डोनट और bagel में क्या फर्क है? So you'll ask me what's the difference between a bagel and a donut. So that's what the difference is. A bagel is baked after being poached, but a donut is fried, and there is no poaching involved in a donut. A donut is always sweet and has a glaze on top, but your bagel is generally savory. Bagel आपका generally नमकीन होता है, donut मीठा होता है, उसको फ्राई करा जाता है, उसको पोच नहीं करते. आपका जो बेगल होता है वो नमकीन होता है और उसे हम पोच करते हैं. तो ये हो गया हमारा डिफरेंस बेगल, ब्रेड और डोनट के बीच में. अब फटाफट से बात करते हैं इंग्रेडिएंट्स की. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंग्रेडिएंट्स. सो वेरी सिंपल इंग्रेडिएंट्स आई हैव ओवर हियर मोनी. बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं. सबसे पहले है मेरे पास होल व्हीट फ्लावर, जो है मेरा चक्की का आटा, नॉर्मल आटा जो हम रोटी बनाने के लिए यूज करते हैं. सो आई हैव 2 cups ऑफ फ्लावर ओवर हियर. फिर मेरे पास है यहाँ पे शहद. देन आई हैव हनी ओवर हियर. फिर मेरे पास है यहाँ पे इंस्टेंट ड्राई यीस्ट. सो एज यू कैन सी आई एम यूजिंग द ड्राई यीस्ट व्हिच हैज रियली टाइनी grains of the yeast. So I am using instant dry yeast. इंस्टेंट ड्राई यीस्ट यहाँ पे मेरे पास है 1 छोटा चम्मच. फिर मेरे पास यहाँ पे नमक है जो है तकरीबन आधा चम्मच, so around ½ teaspoon of salt. Then I have my onion flakes,
Onion flakes है मेरे पास, सूखा हुआ onion है, उसके flakes हैं. So this is around 1 tablespoon of onion flakes that I have over here with me. Then I have some sesame seeds, mixed sesame seeds है मेरे पास. White और black sesame seeds को मैंने mix कर दिया है, वो है मेरे पास. फिर उसके बाद यहाँ पे मेरे पास है dried herbs. So ये जो dried herbs हैं, इसमें मेरे thyme, basil, rosemary सब कुछ mix हुआ हुआ है. So my dried herbs are also somewhere around 1 tablespoon. आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हो. फिर मेरे पास यहाँ पे है baking soda. So this is baking soda. We cannot use baking powder in this dish. And then at the end, I have some soya milk over here. Soya milk इसलिए use कर रहे हैं क्योंकि vegan है ये, ठीक है? So ये हो गए हमारे सारे ingredients. And आटे को गूंदने के लिए for kneading the dough, I have some lukewarm water with me. अब ये हो गए हमारे जल्दी से Chef Divya, ingredients. so sorry to interrupt you. Actually, I just wanted to say that you just slow down a bit so that everybody could catch up. Okay, जल्दी बोल दिया थोड़ा. Yes, थोड़ा सा. So before Okay, that, so हम I replacements की just जो want बात to check करेंगे ना. the audio as अच्छा, well. ठीक है. Yes. So So guys, is there please issue in let the us audio? know. Yes, yes. Just a moment. Let me just know in the chat. So guys, let us know in the chat if the audio is absolutely fine. अगर यहाँ पे आपको audio सही लग रहा है तो chat पे yes बोल दीजिए please. Yes, yes, all right. So guys, for those who are having any audio issue, please wear the headphones if possible, because it's absolutely fine for most people. Okay. So Chef Divya, क्या आप थोड़ा सा volume को high कर सकते हैं? मतलब मैं जोर से बोलूं? Yes, क्योंकि यहाँ पे voice थोड़ी सी low आ रही है बता रहे हैं. Okay, so you want me to speak louder? ये volume ठीक है? Yes, yes, this is perfectly fine. So guys, just let us know if the audio is fine, the volume is fine for everyone. अगर यहाँ पे audio आप सभी को सही से सुनाई दे रही है. We will be translating in English and Hindi, no worries. हम लोग यहाँ पे English और हिंदी में दोनों translate करेंगे. So Okay, if okay. this volume is fine, then we'll proceed. And अब हम जब replacements discuss करेंगे तो replacements के साथ एक बारी ingredients भी हम फिर से discuss कर लेंगे, ठीक है? Yes, that would be great. Okay, Okay. so and a bit more high in volume, Chef Divya, if you could change the setting of the Bluetooth, that would be great. I don't think so. I can speak any louder than this. And the mic is also on full. Just give me a Okay. second. Yes, please. Okay, so अगर मैं चेक करती हूँ तो मेरा माइक का मैंने बिल्कुल मैक्सिमम पे रखा हुआ है. All तो right. So आपको guys, please यहाँ पे मैक्सिमम headphone पे लगा आना लीजिए. चाहिए. माइक मेरा बिल्कुल मैक्सिमम पे है गाइस. आई एम सो सॉरी पर मैं इससे जोर से नहीं बोल पाऊंगी. All right, all right. So guys, यहाँ पे headphone पहन लीजिए, आपको अच्छे से सुनाई देगा. You can wear headphones so that it will be clear for you guys. Yes, let's proceed ahead. ओके, सो अब ठीक है मेरी आवाज. अब थोड़ा सा जोर से बोलने की कोशिश करती हूँ, ठीक है? Yes, yes, yes. तो अब हम रिप्लेसमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं. सो रिप्लेसमेंट्स में यहाँ पे मेरे पास जो होल व्हीट फ्लावर है, इसकी जगह आप कोई भी मल्टीग्रेन फ्लावर, आप यू कैन यूज एनी मल्टीग्रेन फ्लावर और योर ऑल पर्पस फ्लावर. ऑल पर्पस फ्लावर हुआ आपका मैदा. सो आप मैदा या ऑल पर्पस फ्लावर और मल्टीग्रेन फ्लावर भी यूज कर सकते हैं. जैसे आपके जो मार्केट में ऑलरेडी बने हुए फ्लावर आते हैं वो यूज कर सकते हैं. लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि आप जो मल्टीग्रेन फ्लावर यूज कर रहे हो उसमें एक ऐसा फ्लावर होना चाहिए जिसमें ग्लूटेन हो. दैट मीन्स योर मल्टीग्रेन फ्लावर विच यू आर यूजिंग should have a flour which has gluten in it. Either it has whole wheat flour or it has all purpose flour in it. Gluten इससे चाहिए हमको क्योंकि gluten नहीं होगा तो हमारी bread वो इतने अच्छे से नहीं बनेगी. जो end product होगा वो इतना अच्छा नहीं होगा. So we want a flour to have gluten. If you are using multigrain flour, just make sure that one of the grains in it has gluten. Okay? So I hope that was clear. Now I hope the voice is clear, Moni. Yes, yes, absolutely. Okay, so the next ingredient we have is honey. हमारा next ingredient है शहद. अब शहद की जगह आप मेपल सिरप भी यूज कर सकते हो, लेकिन मेपल सिरप और हनी के अलावा आप कुछ और यूज करोगे तो आपको वो टेक्सचर और वो आउटपुट नहीं आएगा. तो
यूजिंग हनी या मेपल सिरप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक बहुत ही क्रूशियल पार्ट है बेगल यूज करने का, आप कुछ और नहीं यूज कर सकते। ट्रेडिशनली मोनी जो हमारे बेगल्स होते हैं ना, वो मेपल सिरप या एक बोलते हैं ट्रिकल बोलते हैं, जो शुगर जब बनती है उसको प्रोसेस करते हुए बनता है। तो ट्रेडिशनली आपके जो बेगल्स होते हैं वो ट्रिकल डाल के बॉईल करे जाते हैं, बट बिकॉज वी डोंट गेट इट सो इजिली इन इंडिया, इसलिए हम हनी विच इज द क्लोजेस्ट सब्स्टिट्यूट या मेपल सिरप यूज करते हैं। सो इफ यू कैन फाइंड ट्रिकल यू कैन यूज इट, बट I couldn't find it any time in India, so we use either maple syrup or honey. ठीक है, फिर उसके बाद जो मेरा instant dry yeast है, so I showed you my instant dry yeast which is like very very tiny grains. तो ये instant dry yeast है। आप instant dry yeast की जगह instant active yeast भी यूज कर सकते हो, so you can use instant active yeast as well, but the way you add that yeast to your dough is going to be slightly different, because the instant active yeast, the dry yeast that you have, the small pearls, the active yeast has to be first activated in water. तो जो आपका active yeast होता है उसके थोड़े से बड़े pearls होते हैं, और आपको उसको पहले पानी में डाल के activate करना पड़ेगा, और फिर वो आप रेसिपी में डालोगे। जो मेरा instant dry yeast है जो मैं अभी यूज करूंगी, इसको हम डायरेक्टली अपने आटे में डालेंगे। सो this active dry yeast, I'm going to add it directly to my dough. Okay. So now after that I have salt. Salt का कुछ replacement नहीं है. I don't have any replacement for salt. Then I have my onion flakes. तो ये जो मेरे onion flakes है, इनकी जगह आप onion powder भी use कर सकते हो, garlic flakes या garlic powder भी use कर सकते हो. So you can use either onion powder, garlic flakes or garlic powder in it. That is the replacement for these. Then जो मेरा है dried herbs की जगह you can go ahead and use any herbs that you like. अगर आप इसको Indian flavor देना चाहते हो तो आप इसमें Indian मसाले भी डाल सकते हो. So if you want to give it an Indian flavor, you can go ahead and add Indian masalas in it as well. Then I have baking soda over here. तो जो मेरा ये baking soda है, इसे मैं replace नहीं कर सकती baking powder से. Under any circumstance, you will not replace your baking soda with baking powder. So baking soda will remain the same. जो मेरे यहाँ पे सेसमे सीड्स हैं, सेसमे सीड्स की जगह आप इसके ऊपर खसखस भी लगा सकते हो, चिया सीड्स भी लगा सकते हो. So you can add either खसखस, which is poppy seeds, or you can add your chia seeds on top to kind of finish it off and give it a nice finish. फिर जो मेरा ये आमंड मिल्क है हो सकता है या सोया मिल्क हो सकता है. वीगन है इसलिए या तो आप आमंड मिल्क यूज करोगे या तो आप सोया मिल्क यूज करोगे. If you are not making a vegan version, then at the end we will brush it with an egg white. अगर आप vegan version नहीं बना रहे हो तो एंड में आप इसे एक अंडे के white portion को फेंट के उससे ब्रश करेंगे. So that is all about our ingredients. I hope हमारे ingredients सारे के सारे clear हो गए हो अब मोनी. Yes, yes, absolutely. And our replacements also we've talked about. So अब फटाफट से हम आटे को गूंद लेते हैं. So now let's quickly knead the dough. क्योंकि डो को knead करने के लिए इसमें it's very important that we work the gluten. ये डो को knead करते हुए मोनी it's very important, बहुत जरूरी है कि आपका जो ग्लूटन है वो एक्टिवेट हो. मैं अपने मिक्सी का यूज कर रही हूँ, आप इसे हाथ से भी गूंद सकते हो. सो यू कैन यूज इट, नीड इट यूजिंग योर हैंड एज वेल, बट व्हेन यू आर नीडिंग इट विद योर हैंड, मेक श्योर कि आप इसे कम से कम 3 से 5 मिनट के लिए गूंदे. You need to knead it for at least 3 to 5 minutes and make sure that when you're kneading it, you stretch it. अभी मैं आपको करके दिखाऊंगी कि कैसे करके स्ट्रेच करके आप इसको नीड करोगे. ठीक है, तो इससे पहले कि मैं इसको नीड करूं, नीड करने से पहले हम जो इसके लिए पानी चाहिए, पानी में हम थोड़ा सा शहद मिलाएंगे. सो आई हैव माय ल्यूकवार्म वाटर ओवर हियर. आई एम टेकिंग हाफ ऑफ द ल्यूकवार्म वाटर. जो मेरा ल्यूकवार्म वाटर मैंने लिया था रेसिपी के हिसाब से, वो आधा मैंने यहाँ ले लिया है. और जो मेरा शहद है, ये शहद मेरे पास यहाँ पे है 4 बड़े चम्मच. सो आई हैव 4 tablespoon ऑफ हनी ओवर हियर.
But for the dough, we need just 2 tablespoon. आटे को गूंदने के लिए सिर्फ हमें 2 चम्मच चाहिए. तो 2 चम्मच शहद लेकर मैं मिला दूंगी इस पानी में. So I am taking the honey and adding it to the water. So इस रेसिपी में हम बिल्कुल भी चीनी का इस्तेमाल नहीं करते. So we are not using any sugar in this recipe. We have sweetened our dough with the help of honey. ठीक है, तो हमने honey यूज करा है अपने डो को मिठास देने के लिए. So I have my honey water ready over here. चीनी वाला पानी की जगह हमने यूज करा है हनी. अब आटे को गूंदना शुरू करते हैं. So let's knead the dough. I have 2 cups of whole wheat flour. 2 कप गेहूं का आटा. अब इसमें जाएगा मेरा आधा चम्मच नमक, हाफ टी स्पून ऑफ सॉल्ट, 1 tablespoon of onion flakes, 1 बड़ा चम्मच onion flakes. अब जो मेरा यीस्ट है ये मैं इसमें डायरेक्टली डाल रही हूँ. ट्रस्ट मी, ऐसे करके सिर्फ 50 मिनट्स बाय द बुक आपको इसको रखना पड़ेगा एक्टिवेट करने के लिए. सो यू नीड टू जस्ट कीप इट फॉर 50 मिनट्स इन अ वार्म एंड डार्क प्लेस. तो इसमें जा रहा है मेरा 1 चम्मच इंस्टेंट ड्राई यीस्ट. और फिर So Chef Divya, there's one question here. So which Indian masala can we use and which soya milk have you used? यहाँ पे Indian masala कौन सा use किया है and soya milk कौन सा use किया है? I am using मिक्स्ड हर्ब्स. लेकिन आप अगर इंडियन मसाला डालना चाहते हो तो आप इसमें कसूरी मेथी डाल सकते हो, आप इसमें अजवाइन डाल सकते हो, आप इसमें भुना हुआ जीरा डाल सकते हो. ये इन सब का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है बेगल में. ठीक है, आप इसमें इनफैक्ट छोटी छोटी बारीक कटी हुई हरी मिर्ची भी डाल सकते हो. सो यू कैन ऐड रियली फाइनली चॉप्ड ग्रीन चिलीज इन इट एज वेल. इवन दे टेस्ट रियली नाइस इन बेगल्स. एंड जो मेरा सोया मिल्क है ये एंड में ब्रश करने के लिए चाहिए मुझको. तो सोफिट का जो फ्लेवरलेस शुगर फ्री मिल्क आता है टेट्रा पैक में, मैंने वो यूज किया. सो आई एम यूजिंग द सोफिट शुगर फ्री फ्लेवरलेस सोया मिल्क. ओके, ऑलराइट. So I have my mixed herbs over here. तो मेरी इन herbs में thyme, rosemary, parsley, basil और oregano सब कुछ है. So ये है 1 tablespoon mixed herbs और इन्हें अब मुझे अच्छे से मिक्स करना है. So अगर आप हाथ से गूंद रहे हो so you will, आप हाथ से शहद वाला पानी डालने से पहले इसको अच्छे से गूंद लोगे, मिक्स कर लोगे. Okay, so just mix it well. एंड अब हम क्या करेंगे, इसमें अब हम पानी डाल के गूंदेंगे. तो जितनी देर मैं गूंद रही हूँ मैं म्यूट पे जाऊंगी क्योंकि मेरी मशीन शोर बहुत मचाएगी. तो आप इसको अच्छे से पानी से गूंद लीजिए. तो पानी से जब हम गूंदेंगे मोनी, तो ये उतना हमने इसको हार्ड रखना है. जब आप कोई ब्रेड बनाते हो या जब आप भटूरे का आटा गूंदते हो तो वो बहुत ज्यादा सख्त नहीं होता है पर बहुत ज्यादा गीला भी नहीं होता है. इट्स लाइक मीडियम सॉफ्ट. लेकिन आटा ऐसे गूंदो कि आटे में बिल्कुल भी आपको कुछ बबल्स ना दिखे, बहुत स्मूथ लगना चाहिए. सो व्हेन यू आर नीडिंग द डो इट शुड बी सॉफ्ट बट नॉट वेरी वेरी लूज एंड इट शुड बी अ वेरी नाइस स्मूथ डो. तो अभी मैं आपको गूंद के दिखाती हूँ कि आपका डो कैसा होना चाहिए. ओके, ऑलराइट. सो गाइज यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा रिकैप दे देती हूँ. सो यहाँ पे हम लोग वेगन का स्पेशल डिशेस कर रहे हैं, जैसे कि बनाना वॉलनट ब्रेड. वी आर डूइंग द वेगन स्पेशल डिशेस as banana walnut bread. So over here vegan is basically a plant based product, not the animal based. तो यहाँ पे vegan जो है plant based product है, animal based नहीं है. ओके, सो ओवर हियर वी आर मिक्सिंग द डो. अभी हम लोग मिक्स कर रहे हैं डो को. सो पहले हम लोगों ने डिस्कस किया इंग्रेडिएंट्स के बारे में, रिप्लेसमेंट के बारे में, फिर हम लोग प्रोसेस में आए हैं. So over here we have discussed regarding the ingredients, replacement, and right now we are doing the process. So guys over here I just want to ask one question. So यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी आप सभी को. What is the difference between donut and bagel? So आप यहाँ पे chat box में बता सकते हैं guys. You can just let us know in the chat box what would be the difference between bagel and donuts. Okay, so Ayan sir is saying donut is fried. Okay, so Komal ma'am is saying sweet and salty, baked and fried. Okay, so guys, I would need a proper explanation यहाँ पे donut क्या है और
आपका बेगल क्या है? व्हाट वुड बी डोनट एंड बेगल? Donut is sweet and bagel is savory. Okay, Lata ma'am. Okay, so I would need the perfect answer. Bagel is poached by Aishwarya ma'am. Bagel is poached in honey water. Donut is sweet and bagel is savory. Yes, so over here, Shwet's ma'am has given the right answer. Bagels are baked and donuts are fried. So यहाँ पे श्वेत मैम ने सही आंसर दिया है. बेगल आपका बेक किया होता है एंड डोनट्स आपका फ्राई किया होता है. एक्चुअली सभी ठीक है, पता है, बिकॉज आपके आजकल बेक्ड डोनट्स भी आते हैं, तो मेनली आपके डोनट्स तो पोच कर नहीं करते और उनको फ्राई करते हैं सीधा जब वो बन चुके होते हैं, प्रूफ हो चुके होते हैं. जो बेगल्स है आपके, उनको पोच करना बहुत जरूरी होता है. सो बेसिकली इट्स अ पोचिंग पार्ट विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्चुअली. एंड हाँ, सेवरी सेवरी और उसका भी होता है. एंड आपके बेक एंड फ्राई की तो हम बात कर ही चुके हैं ऑलरेडी. So it's Yes, actually yes. a combination of everything. So everybody was correct. Alright, तो guys So यहाँ पे आपका सभी का सही आंसर है. लता मैम ने तो हाथ उठा दिए थे यस करके. so आप देख सकते हैं मेरा डो कितना स्मूथ बन चुका है. So you can see how smooth my dough is. तो एक चीज का ध्यान रखना है आपने, जब आप डो को नीड करेंगे तो वो आप अच्छे से नीड करना, ताकि उसका जो सरफेस है वो बहुत स्मूथ लगना चाहिए. ठीक है. एंड जब आप हाथ से नीड करोगे, जनरली व्हाट यू नीड टू डू इज उसको काउंटर पे रख के इस तरीके से खींचेंगे, फिर वापस लेके आएंगे, फिर पलटेंगे, फिर खींचेंगे, फिर वापस लेके आएंगे. सो दैट इज हाउ यू सपोज टू नीड द डो. यू नीड टू स्ट्रेच इट, देन यू नीड टू ब्रिंग इट बैक. ओके. Okay, so So guys, this is my dough which is ready. अब मैं अपने इसको हल्का सा ग्रीस करूंगी. ग्रीस करने के बाद इसमें मैं अपने डाल दूंगी डो को रेस्ट करने के लिए. ओके. right. Yes. So guys, over here I see a lot of questions in the WhatsApp group. No worries guys, you can just note down your queries for now and let's focus on the process. तो जैसे कि मैं देख सकती हूँ WhatsApp group में बहुत सारी queries आ रहे हैं. So please guys, अभी के लिए हम लोग process को focus करते हैं and यहाँ पे आपके जो भी queries है आप note कर लीजिए ताकि बाद में यहाँ पे आप पूछ सकते हैं Zoom chat में. तो ये जो मैंने डो करा है मोनी, इसको मुझे रेस्ट करने की जरूरत है तकरीबन 1 घंटा इन अ वार्म डार्क प्लेस. तो फॉर 1 hour वी विल प्रूफ दिस डो इन अ वार्म डार्क प्लेस टिल इट डबल्स इन साइज. जब तक वो साइज में डबल नहीं हो जाता तब तक हम उसको रेस्ट करेंगे. क्योंकि मेरे पास इतना टाइम था नहीं कि हम उसको रेस्ट कर सके, इसलिए मैंने ऑलरेडी डो बना के रखा हुआ है. कैन यू सी दिस डो? ये मैंने ऑलरेडी उतनी ही क्वांटिटी है. आप देखो ये डबल हो गया. कैन यू सी दीज बबल्स ओवर हियर? आप ये बबल्स देख सकते हैं सारे के सारे. तो ये डो मेरा बहुत अच्छे से फूल चुका है. सो दिस डो हैज रिजन वेरी नाइसली. अब इसको हम क्या करेंगे, हल्के हाथ से इसको हम पंच करेंगे. पंच करेंगे ताकि इसमें से हवा निकल जाए. ठीक है. सो नाउ just let me quickly clean my hands and come back, Moni. Okay, just give me a minute and I'll be back. Yes, yes, absolutely. So guys, हम लोग यहाँ पे bagel का process कर रहे हैं. We are doing the process of onion and herb bagels. So over here, all the ingredients and measurements are given in the PDF. यहाँ पे सारे ingredient और measurement आपको PDF में दिया गया है. So please do have a check. आप जरूर check कर सकते हैं. And वहाँ पे आपको replacement भी लिखा हुआ है. We have given the replacement as well. एंड द स्टोरेज लाइफ, यहाँ पे आपको स्टोरेज लाइफ और रिप्लेसमेंट भी दिया गया है. सो यू कैन ऑलवेज नोट डाउन द एक्स्ट्रा टिप्स ओवर हियर थ्रू द एक्स्ट्रा नोट्स. यहाँ पे आप पेन एंड पेपर रख सकते हैं जहाँ पे एक्स्ट्रा टिप्स लिख सकते हैं. यहाँ पे शेफ दिव्या हर रोज हमेशा यहाँ पे टिप्स देंगे. सो इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव अ पेन एंड पेपर. एब्सोल्युटली, क्योंकि छोटी छोटी चीजें होती है ना जो हम पीडीएफ में लिखना लाइक सोचते नहीं है कि ये टिप लिखनी होगी, लेकिन जब बना रहे होते हो तो आप नोटिस करते हो. सो इट्स ऑलवेज गुड टू हैव अ पेन एंड पेपर एंड टेक नोट्स. सो मोनी, आई हैव माय डो ओवर हियर. अब मैं क्या करूंगी, हल्का सा सूखा आटा लेकर अपने वर्क काउंटर पे डालूंगी. सो
I am shaping my bagels and taking out my dough. तो मैंने हल्का सा सूखा आटा अपने काउंटर पे डाल दिया है वर्क एरिया पे, और मैंने अपना डो उसके ऊपर निकाल दिया है, ठीक है। और अब हमने इस डो को डिवाइड करना है। सो दिस डो विल बी डिवाइडेड इनटू अप्रोक्सीमेटली 6 to 8 पीसेस। सो इसको हम अप्रोक्सीमेटली 6 to 8 पीसेस में डिवाइड करेंगे, ठीक है। सो डो है मेरा, इसको मैं आराम से So Chef डिवाइड Divya, करूंगी। हाँ can जी, we knead the dough with our hand, and if so, how much time would it take? एब्सोल्युटली। मैंने आपको बताया, आप जब हाथ से गूंदोगे आटे को तो आपको कम से कम 3 से 5 मिनट इसको अच्छे से गूंदना है। सो एटलीस्ट फॉर 3 to 5 minutes यू नीड टू knead the dough with your hand. ओके, अब मेरे पास यहाँ पर ये है, एक मैंने पोर्शन उठा दिया है एंड इसको साइड से आटे को इस तरीके से लेकर मैं पिंच कर दूंगी एंड में, ताकि मेरे पास ऊपर से एक स्मूथ लुकिंग डो बॉल हो, so that I have a smooth looking dough ball. And now the fun part, जिसमें मुझे सबसे ज्यादा मजा आता है while shaping the donuts is center portion लिया and just need a poke a hole and ये हो गया मेरा bagel तैयार। So this is the classic way a bagel is shaped. So हम अपने bagel को इस तरीके से shape करेंगे। ओके मॉनी, so मैं आपको फटाफट से ये फिर से दिखा देती हूँ शेप करके। Yes. So Chef Divya, यहाँ पे आपकी कैमरा ऑफ हो चुकी है। हाँ, अब आ गया कैमरा। Yes, yes, perfect. या, सो आई हैव दिस। इसको हल्का सा हम आटा लगाएंगे। आई हैव माय बॉल, आई पोक अ होल इन द सेंटर एंड वंस माय फिंगर इज थ्रू, पकड़ के हल्का सा, बहुत ज्यादा मत करना रोल इसको, नहीं तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। सो वी विल नॉट बी पुलिंग इट अ लॉट। ओके, Okay. So Chef Divya, how to know that the dough is ready? यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि dough knead हो चुका है? so when you will knead the dough, what will happen is that आपको डो से ना हल्की सी रेजिस्टेंस आने लगेगी। सो यू विल स्टार्ट फीलिंग अ स्लाइट रेजिस्टेंस इन योर डो। ओके, तो डो से रेजिस्टेंस का मेरा मतलब है कि आपका जो आटा है उसको जब आप टच करोगे ना, तो वो आपको लगेगा कि हाँ हल्का सा फर्म है आपका आटा। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, मेरे को बार बार कॉल आ रहा है, आई एम सो सॉरी, जिसकी वजह Okay. से ये डिस्कनेक्ट हो रहा है। सो और आपका आटा बहुत स्मूथ लगने लगेगा आपको। सो दैट इज हाउ यू गेट टू नो कि आपका आटा तैयार हो चुका है। सो इट विल गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ रेजिस्टेंस। जब आप उसको टच करोगे तो आपको फर्म लगना चाहिए। ये वाले डो में मैं आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि ये डो मेरा ऑलरेडी रेस्ट हो चुका है। तो जो आपका डो मैंने नीड करके रखा है अभी, उसमें अगर मैं आपको दिखाऊं, Okay. so So this is Chef my dough. Divya, can we use a dough donut cutter? यहाँ पे क्या donut cutter use कर Yes, you सकते हैं? can use a donut cutter as well. एब्सोल्युटली, आप एक डोनट कटर को भी यूज कर सकते हो इसके लिए, ठीक है। आप डोनट कटर को यूज कर सकते हो। आप इसमें एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इसको, अभी मैं आपको दूसरा तरीका भी दिखा देती हूँ, इसको आप वैसे करके भी कर सकते हो शेप, ठीक है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू शेप 2 to 3 ऑफ दीज बिकॉज वी डोंट हैव सो मच ऑफ टाइम। बस ये लास्ट शेप कर लेते हैं। बाकी का जो मेरा डो है इसको मैं वापस डाल देती हूँ रेस्ट करने के लिए, सो दैट वी कैन मेक आर बनाना ब्रेड एज वेल, ठीक है। तो ठीक है। जो दूसरा तरीका है, एक तो आप इसको डोनट कटर से भी कट कर सकते हो जैसे हमारे एक मैम ने बोला है, बट व्हाट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट फॉर्म इट इनटू अ लॉग एंड एंड में हल्का सा इसके एजेस को गीला करके इसको पिंच कर दो आप। So sorry All for right. this. So Chef Divya, if you have a Wi-Fi on, you can just put your mobile on airplane mode.
जस्ट लेट मी डू दैट, वही कर लेती हूँ। अब हो गया, ठीक है। Yes, the camera needs to be on right now. Yes, perfect. ओके, Yes. तो हम इस तरीके से भी इसको शेप कर सकते हैं, ठीक है। सो यू कैन शेप इट दैट वे ऑल्सो, बट इसमें एक चांस रहता है कि आपका यहाँ से हल्का सा खुल सकता है बेगल, so there is a possibility that the bagel might open, so that's why we shape it by inserting our finger in the center. तो इसीलिए हम छेद बीच में हाथ से करके फिर शेप करते हैं, ठीक है। so now I will set them aside to rise and rest. आटे कपड़े के ऊपर मैंने हल्का सा फ्लावर डाला है, and just lightly dusting my cloth with a little bit of flour, and I am putting my bagels over here to rise. अब जो मेरे bagels हैं ये तकरीबन 15 मिनट के लिए हम रेस्ट करने के लिए रख देंगे. So I am setting them aside for 15 minutes to rise. Okay. So that is it for our bagels. And now let's quickly move on to our banana bread. Okay, so Chef Divya, how long we can keep the leftover dough and how to store it and how to reuse it again? यहाँ पे अगर डो को leftover हो गया है तो कैसे store करें and तो reuse जो मेरा करें? ये डो है इसको मैं अगर चाहूँ तो I can keep it in the freezer, in the fridge, sorry, for around an hour or so. उससे ज्यादा हम नहीं रखेंगे क्योंकि फिर मेरी yeast जो है वो हल्की सी खटास देने लगेगी, because then it will give out a little bit of sourness. So maximum 1 hour you can keep it in the refrigerator, not more than that. Okay. All right. So Chef Divya, as the camera was getting on and off, could you show just one bagel the shape? यहाँ पे एक bagel का shape दिखा सकते हैं क्या? So you want me to shape one bagel again? Yes, please. A second. Let me take out my dough. So approximately ये था मेरा size, यही आ गया है. So as I said, ये हमने इसको काटा था approximate. I will slightly dust my hands. मैंने साफ कर दिया था यहाँ पर अपना काउंटर. तो इसको अब हम साइड से pinch करेंगे इस तरीके से. So you will pinch in the sides like this, so that it is nice and smooth from the other side. अब हाथों पे हल्का सा डो लगाओगे आप. You'll put some dry flour, not dough. You'll put some dry flour and then just insert your finger in the middle. Finger बीच में डालकर आप इसको हल्का सा इस तरीके से घुमाओगे. So you'll just put your finger in the center and spread it a little bit, and that's it. आपका bagel का shape तैयार है. So your bagel is shaped now. I hope this was clear now. Yes, yes, absolutely. Okay. Guys, यहाँ पे आप सभी को अब clear होगा. Yes, now let's proceed ahead with our second dish, which would be the banana walnut bread. Banana walnut bread. So I have the ingredients for my banana walnut bread over here. So अब ingredients को हम discuss कर लेते हैं. तो इसको हम banana bread क्यों बोल रहे हैं, cake क्यों नहीं बोल रहे? So why are we calling it a bread and not a cake? So the difference between a banana bread and a banana cake is banana bread का dough जो हम अभी batter बनाएंगे ये थोड़ा सा thick होगा. So in comparison to a cake batter, it is slightly thicker, which makes the end result a little bit more dense. तो मेरा जो end result होगा, cake मेरा थोड़ा सा ज़्यादा spongy होगा, मेरी जो banana bread है वो थोड़ी सी dense होगी. So it won't be as spongy as a cake. And जो मिठास है banana bread में banana cake से थोड़ी सी कम होती है. So the sweetness also in a banana bread in comparison to a banana cake is slightly less. So these are the two key differences between a banana bread and a banana cake. ठीक है? तो हम healthy baking है इसलिए हम banana cake नहीं बना रहे, हम banana bread बना रहे हैं. So now let's start with the ingredients for our banana bread.
तो इसमें हम ऑलरेडी अपने फ्लैक्स सीड्स को पानी में भिगो चुके हैं, अगर आपको याद होगा. सो दैट वाज 1 टेबलस्पून ऑफ फ्लैक्स सीड. 1 बड़ा चम्मच फ्लैक्स सीड को मैंने अच्छे से पीस दिया था, उसे मैंने 1/4 पानी में डाल दिया. और ये देखिए अब ये फूल गया है, जेल में कन्वर्ट हो गया है. ठीक है, तो इसके साथ साथ अब मेरे जो बाकी के इंग्रेडिएंट्स हैं वो है whole wheat flour. So I have my whole wheat flour over here, which is 1 cup. फिर मेरे पास है यहाँ पे वॉलनट्स, मेरे अखरोट जो है 1/4 कप, 1/4 कप. फिर मेरे पास यहाँ पे है शक्कर, विच इज योर जैगरी पाउडर, दैट इज ऑल्सो 1/3 कप. दिस इज 1/3 कप. फिर मेरे पास यहाँ पे है ऑलिव ऑयल. मैं यूज कर रही हूँ लाइट ऑलिव ऑयल. सो दिस इज लाइट ऑलिव ऑयल, 1/4 कप, 1/4 कप. फिर ये मेरे पास है यहाँ पर सिनेमन पाउडर. दालचीनी को मैंने अच्छे से मिक्सी में पीस दिया था. आप रेडीमेड दालचीनी पाउडर भी यूज कर सकते हो. यू कैन यूज रेडीमेड सिनेमन पाउडर एज वेल. ये मेरे पास यहाँ पे है आधा छोटा चम्मच, विच इज हाफ टी स्पून. फिर मेरे पास यहाँ पे है नटमेग पाउडर, जो आपका जायफल होता है उसका पाउडर है, 1/4 चम्मच, 1/4 टी स्पून. एंड देन आई हैव माई बेकिंग पाउडर जो है 1 चम्मच, 1 छोटा चम्मच. सो बेकिंग पाउडर इज 1 टी स्पून एंड 2 राइप बनानास. तो आपके जो बनानास है वो अच्छे पके हुए होने चाहिए. अगर आप कच्चे बनाना का इस्तेमाल करोगे तो आपके केक में उनके पीसेस आएंगे और वो अच्छे से पकेंगे नहीं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू यूज नाइस एंड राइप बनानास सो दैट दे ब्लेंड वेरी नाइसली इनटू योर डो. अगर आपके केले हल्के से कच्चे हैं तो आप इन्हें 160 डिग्री पर अपने अवन में 10 मिनट के लिए पका सकते हैं. So if your bananas are not ripe, you can just bake them in your oven at 160 degree for around 10 minutes. Okay? तो अब बात कर लेते हैं फटाफट से हम इनके रिप्लेसमेंट्स की. तो जो मेरा होल व्हीट फ्लावर है, होल व्हीट फ्लावर को मैं रिप्लेस कर सकती हूँ मल्टीग्रेन फ्लावर, ओट्स फ्लावर या ऑल पर्पस फ्लावर. तो मैं ओट्स का फ्लावर, मैदा या मल्टीग्रेन फ्लावर अपने होल व्हीट फ्लावर की जगह भी यूज कर सकती हूँ. क्वांटिटी सेम रहेगी. सो यू डोंट हैव टू चेंज द क्वांटिटी. यू नीड टू यूज 1 कप फॉर दिस रेसिपी. जो शक्कर है, शक्कर की जगह कोकोनट शुगर, पाम जैगरी या आपका हनी, मेपल सिरप, और अगर आप उसको अनहेल्दी वर्जन में लेके जाना चाहते हो तो नॉर्मल चीनी. सो यू कैन यूज any sweetener that you like in this particular recipe. So honey, maple syrup, palm sugar, normal sugar, coconut sugar, you can use anything. Walnuts, the name is a banana walnut bread, so I am using walnuts. You can add in any nuts if you want. For your nutmeg and your cinnamon powder, you can switch it with vanilla essence. तो आपके दालचीनी पाउडर और जायफल के पाउडर की जगह अगर आपको वो स्पाइसेस वाला फ्लेवर, जो वो वार्म फ्लेवर होता है, वो नहीं चाहिए, आप इसमें वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं. बेकिंग पाउडर तो रहेगा ही, उसकी जगह आप कुछ और यूज नहीं करोगे. और फिर उसके बाद जो मेरा ऑयल है, मैं यूज कर रही हूँ ऑलिव ऑयल. अगर आप ऑलिव ऑयल नहीं यूज करना चाहते तो आप इसमें कोई भी फ्लेवरलेस ऑयल यूज कर सकते हैं. सो यू कैन यूज एनी फ्लेवरलेस ऑयल ओवर हियर, or you can go ahead and add butter. But if you're adding butter into it, it will not be a vegan dish anymore. So आप यहाँ पे add करोगे butter या कोई भी flavorless oil. So you can switch the fat as per your choice. And in place of flaxseed powder की जगह या तो आप aquafaba या एक अंडा यूज कर सकते हो. So you can switch your flaxseed powder either with an egg or with aquafaba. ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे इंग्रेडिएंट्स की. अब हम फटाफट से अपना डो बनाते हैं. ओके, Alright. So Chef Divya, how to make these flaxseed powder at home? यहाँ पे flaxseed powder कैसे बनाते हैं? फ्लैक्सीड्स लिए, ग्राइंडर जार में डाला और ब्लिट्स कर दिया. जब पाउडर बन गया, योर फ्लैक्सीड पाउडर इज रेडी. इट्स वेरी सिंपल. कुछ इसमें प्रिपरेशन नहीं करनी, कुछ रोस्ट नहीं करना, nothing. It's simply just grind up your flax seeds in your grinder jar. That's it. It's very, very simple. All right. And how much of flaxseed do we need to add while boiling? यहाँ पे boil करने के वक्त flaxseed कितना? हमने boil नहीं करा है.
हमने उसको सोक करा है इन 1 tablespoon of hot water. So sorry, 1/4 tablespoon, 1/4 cup of hot water में हमने 1 tablespoon ऐड करा है फ्लैक्स ओके, फ्लैक्स पाउडर. तो All ये मेरे right. पास यहाँ पे बनानास है. बनानास को मैं अच्छे से पील कर लूंगी. एंड पील करने के बाद नाउ आई नीड टू मैश दीज बनानास. सो बनानास को मैश करने के लिए आई ऑलवेज लाइक यूजिंग अ फोक. तो मैं एक कांटे से इनको अच्छे से मैश कर दूंगी. राइट All right. बनाना में So बस यही प्रॉब्लम रहता है कि एजेस उसके थोड़े से काले होने लगते हैं. yes, right. So chef, क्या हम यहाँ पे small banana use कर सकते हैं? Can we use the small bananas? मैम टिल द टाइम वो अच्छे मीठे हैं, सॉफ्ट है, आप छोटे केले भी यूज कर सकते हो. जस्ट मेक श्योर कि जब आप उसको मैश करोगे तो अप्रोक्सीमेट उसका जो वॉल्यूम है, जो उसकी क्वांटिटी है, जब आप उसको कप में डालोगे तो अप्रोक्सीमेटली 2/3 कप होनी चाहिए. सो इफ यू आर यूजिंग मैश्ड a small banana, you can go ahead and use that as well. So just make sure when you're using it, it's nice and sweet and soft. And when you mash it, the quantity should be approximately 2/3 of a cup. ठीक है? All right. And can we use kapli flour for bread? क्या हम kapli flour use कर सकते हैं bread के लिए? मैम कपली फ्लावर क्या होता है? आई एम सो सॉरी, आई एम हियरिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम. All right, all right. Okay, If you no can tell me worries. the English name for it, maybe I know it by the English name. If anybody The can tell us the English name for this. kapli, Khapli. I'm so sorry, I've never heard of this flower before. I've worked with a lot of flowers, but this is the first time I'm hearing this flower. So whoever has asked this question, please tell us the English name for this, please. ठीक है. And instead of soya milk in first recipe, if we don't want the vegan, can we use normal room temperature milk? Yeah, you can use normal room temperature milk, or you can go ahead and use an egg white also if you like. So you can see we have used soy milk in place of normal milk actually in this because it's a vegan recipe. ठीक है? So मेरा banana mash हो चुका है. अब before we proceed any further, तो सबसे important step जो होता है वो होता है अपने oven को preheat करना. So I am setting my oven on preheating. This needs to preheat for around 5 to 10 minutes at 180 degree. 180 डिग्री पे 5 से 10 मिनट ले मैं अपने oven को preheating पे रख रही हूँ. ठीक है? अब हम अपनी बनाना ब्रेड की रेसिपी करते हैं शुरू. तो मेरा बनाना मैं ऑलरेडी मैश कर चुकी हूँ. आई हैव ऑलरेडी मैश्ड द बनानास. आई हैव माय फ्लैक्सी पाउडर ओवर हियर व्हिच इज मिक्स्ड इन वाटर. इसको हल्के से आप मिक्स कर लेंगे. सो वी जस्ट मिक्स इट अ लिटिल बिट. तो फ्लैक्सीड को बनाना ब्रेड में डालने का पर्पस ये है that it holds your bread together and it gives it a slight nuttiness. तो आपके फ्लैक्सी डालने से क्या होगा, आपकी ब्रेड एक तो जुड़ी रहेगी जैसे एक अंडा जोड़ के रखता है, और आपकी ब्रेड में फ्लैक्सी की वजह से एक हल्का सा जो नटीनेस होता है, अर्दीनेस होता है, वो आ जाएगा. तो मैंने इसमें डाल दिया है अपना फ्लैक्स सीड. अब मैं इसमें डालूंगी अपना ऑलिव ऑयल. सो आई हैव माय 1/4 कप ऑफ ऑलिव ऑयल ओवर हियर. फिर इसमें मैं डालूंगी अपना नटमेग पाउडर को भी डाल देते हैं इसमें, हम सिनेमन पाउडर को भी डाल देते हैं, और इसको अब हम अच्छे से करेंगे मिक्स. So now I have added my cinnamon powder, my nutmeg powder, olive oil, flaxseed and banana, and I will whisk it. And now I will add in my shakkar. So अब जा रही है मेरी jaggery powder, which is 1/3 cup of jaggery powder. Just mix this well. इसको भी अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए. अब जो ये मेरा मिक्स हो गया है, तो मैंने अपने जो होल व्हीट फ्लावर है इसको ऑलरेडी छाननी से छान के रखा हुआ है. सो आई हैव ऑलरेडी सिफ्टेड माय होल व्हीट फ्लावर, सो आई डोंट नीड टू सिफ्ट इट अगेन. अगर आपका ऑलरेडी छाना हुआ नहीं है तो आपको अभी अपने होल व्हीट फ्लावर को छानना पड़ेगा.
So if your whole wheat flour is not sifted, you need to sift it right now. So in goes my 1 cup of whole wheat flour, 1 cup गेहूं का आटा, और इसमें अब जाएगा 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर। और जो हमारे वॉलनट्स थे, वॉलनट्स में से हम थोड़े से वॉलनट्स को रहने देंगे और बाकी के वॉलनट्स इसमें ऐड कर देंगे। सो आई एम जस्ट लीविंग असाइड अ फ्यू वॉलनट्स एंड एडिंग अ फ्यू into this. Okay, so I'm adding this, and now all we need to do is mix it with a spatula. तो इसको अब हम अपने spatula से अच्छे से mix कर लेंगे। All right. ठीक है? So Chef Divya, could you explain the process of baking in pressure cooker? क्या आप baking जो pressure cooker में करते हैं उसका process बताएंगे please? तो आप अगर देखोगे तो मैंने आप जब प्रेशर कुकर में बेक करते हैं, सो यू हैव 2 ऑप्शंस। या तो आप नीचे पानी रख के फिर स्टैंड रख के बेक कर सकते हो, या आप नीचे नमक डाल के फिर उसके ऊपर स्टैंड या कटोरी रख के फिर बेक कर सकते हो। बट व्हाइल डूइंग सो आपके जो प्रेशर कुकर की सीटी होगी आप उसको निकाल देना। यू नीड टू टेक आउट द whistle of your pressure cooker. Okay, so you will just follow all these steps, put it into your mold, and then initially for the 5 minutes you will put it on high flame. सिर्फ स्टार्टिंग के जो 5 मिनट होंगे तब हम उसको हाई फ्लेम पे रखेंगे और फिर उसके बाद हम उसको मीडियम फ्लेम पर कर देंगे. आफ्टर दैट वी विल रिड्यूस इट टू मीडियम फ्लेम. सो माय डो इज रेडी. ओके, एंड बस उसके बाद आप उसको अच्छे से बेक कर लीजिए. सो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, बट हाँ उसमें जो आपकी बनाना ब्रेड होती है, सी ट्रेडिशनली ये सारी की सारी चीजें ओटीजी में बेक होती है. आप माइक्रोवेव में बनाओगे उसमें हल्का सा ड्राई होता है, उतना ब्राउन नहीं होगा. सो इफ यू मेक इट इन अ माइक्रोवेव it will be slightly drier and it will not be as brown. And when you make it in an OTG, in a kadhai, there are chances at times it becomes too soft. If you use water, it becomes like a pudding. Or if you're using it on salt, then at times it burns from the sides and it doesn't get a very nice brown crust from the top. कभी कभी नीचे से थोड़ा सा ज्यादा ब्राउन हो जाता है क्योंकि नीचे से हीट आ रहा है सिर्फ और ऊपर से ब्राउन नहीं होता है. सो ये आपका हल्का सा आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा जब आप गैस पे या माइक्रोवेव में पकाते हो. ठीक है, सो दैट इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड. सो आई हैव माय लोफ्टिन ओवर हियर. इसको मैंने हल्का सा साइड में ऑयल लगाया है और यहाँ पर मैंने पार्चमेंट पेपर लगा दिया है. ऑयल हम इसलिए लगाते हैं ताकि इन केस आपका बैटर लीक कर जाए, वो नीचे चिपके ना. सो वी आर putting oil in it because just in case if the batter leaks from the parchment paper, it doesn't stick. तो आप देख सकते हो ये हमारा जो बनाना ब्रेड का बैटर है ये कितना थिक है. इट्स नॉट लाइक योर केक. तो ये बनाना ब्रेड का बैटर मेरा हो चुका है रेडी. सो as you can see it's thick and it's not like a cake batter. I will slightly spread it. All right. So Chef Divya, Okay. what are the different types of yeast and how to use them? यहाँ पे different type of yeast क्या है और कैसे use करें? So मैम जो different types of yeast हैं, एक होता है आपका dry active yeast, एक होता है dry inactive yeast और एक होता है आपका active yeast. तो active yeast आपको generally bakeries में मिल जाएगा. अगर वो वहाँ पे आपके लोकल मार्केट में अवेलेबल है एक्टिव यीस्ट, तो उसको तो बस आपको पानी में डिसॉल्व करना है. सो यू जस्ट नीड टू डिसॉल्व इट इनटू वाटर एंड देन पुट इट. और बाकी इससे पहले मैं आपको बताऊं, लेट्स फर्स्ट पुट इट इन द ओवन एंड लेट्स कंप्लीट द प्रोसेस फर्स्ट, देन वी विल टॉक अबाउट द यीस्ट. ओके, सो अब ये जाएगा मेरा प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री पर एंड दिस विल बेक फॉर अराउंड 30 to 35 मिनट्स. सो 30 से 35 मिनट के लिए 180 डिग्री पे ये मैंने बेक करने को रख दिया है अपना. मैंने इसमें सेंटर वाली शेल्फ में रखा है. मेरा ओवन बड़ा है और ये मेरा बेकिंग मोड पे ऑन है. तो आपके ओवन में जिस मोड पे आप केक्स बनाते हो आप उसी मोड पे इसको बनाओगे. सो यू विल मेक इट इन दैट मोड इन विच यू मेक केक्स इन योर ओवन. एंड
Moni, let's do one thing first. Let's start poaching our bagels, and then we'll discuss about the different types of yeast. Otherwise, we won't be able to complete the process. Okay? All right. So what is Yeah. poaching basically? ये poaching क्या है? हाँ, तो पोचिंग का मतलब होता है हमारा लिक्विड में इनको स्लाइटली डालकर धीमी आंच पर हम इसको बॉईल करेंगे. तो हम इसको बॉईल नहीं कर रहे हैं, इसको हम धीमी आंच पर पानी में बॉईल कर रहे हैं. तो ये प्रॉपर बॉईल नहीं होगा, पक रहे हैं. ठीक है. एंड I forgot to add my walnuts on top of the walnut banana bread because we started talking about the. So मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ अपने banana walnut bread के ऊपर walnuts. ठीक है. We started talking about the yeast and I just completely slipped out of my mind. So thankfully time से याद आ गया हमें. So poaching को करने के लिए I have some water which you can see is bubbling. ठीक है. तो पानी मेरा already गर्म हो रहा है. इसमें अब मैं डालूंगी honey. So now I'm adding in my honey to this water. तो 2 चम्मच मेरा पानी बचा, 2 चम्मच मेरा honey बचा हुआ था of my recipe. So 2 tablespoons that were left in my recipe. I am adding it and mixing it through. ठीक है. अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी इसमें. All right. So what would be the flame in gas stove? अगर हम gas stove में use कर रहे हैं तो flame क्या होगा? तो जब आप गैस स्टोव पे बना रहे हो इसको, तो इनिशियली पानी को आप उबाल पर लेके आओगे. सो इनिशियल जब आप पानी को गर्म करोगे तब आप इसको हाई फ्लेम पे उबालने को लेके आओगे. एक बार ही जब मेरा पानी उबलने लग गया है, उसके बाद हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम कर देंगे. ठीक है. सो वंस इट स्टार्ट्स बॉइलिंग, देन वी विल रिड्यूस द फ्लेम टू मीडियम टू लो. तो अब हम हल्की सी धीमी आंच कर देंगे. ठीक है. अब आप देख सकते हो ये बॉईल होना शुरू हो गया है. जब ये इस स्टेज पर पहुंच जाएगा, हल्के से इसमें बबल्स आने लगे, मुझे दिख रहा है बॉईल होने लग गया है. अब मैं अपने पानी को धीमी आंच पे कर दूंगी. सो नाउ आई विल रिड्यूस द फ्लेम एंड ऐड इन द बेकिंग सोडा. तो बेकिंग सोडा हम क्यों ऐड करें? व्हाई आर वी एडिंग बेकिंग सोडा? Because what it does is it acts with the yeast that is there in my bagels and it gives my bagels a chewiness. जो हल्का सा खिंचाव सा होता है और जो सॉफ्टनेस सी होती है, वो yeast के साथ रिएक्ट करता है बेकिंग सोडा, और वो इसलिए हम यूज करते हैं. तो अगर आप देख सकते हो मोनी, मेरे बेगल्स रेस्ट करने के बाद हल्के से साइज में राइज कर चुके हैं. ठीक है. So now what I need to do is I just need to carefully pick it up and drop it into this water. तो हल्के से उठाया इनको. ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे करके उठा रही हूँ मैं. बिल्कुल हल्के से हाथ से इनको उठाया. ज्यादा जोर से आप उठाओगे तो इनकी जो फूला है, ये जो प्रूफ करा है, वो क्रश हो जाएगा. तो इसको उठाया हल्के से हाथ से. So I'm just picking it up gently with my hand and dropping it into the water. Okay. So I am just showing you how to poach 2 of these bagels right now. तो ये धीमी आंच पर अभी मेरे poach हो रहे हैं. So they are poaching on low flame right now. And once it's been 1 minute, 1 मिनट के लिए इनको मैं इस साइड से पोच करूंगी. फिर उसके बाद इसको मैं पलट दूंगी एंड उसको दूसरी साइड से भी 1 मिनट के लिए पोच करूंगी. सो आफ्टर 1 मिनट आई विल स्लाइटली flip them and then I will poach them from the other side also for 1 minute. ठीक है. All right. And Chef Divya, what would be the temperature for the induction? यहाँ पे temperature क्या होगा induction का? अभी मैंने टेम्परेचर तो नहीं रखा हुआ, मैंने 800 पावर पे रखा हुआ है. सो एवरी इंडक्शन हैज अ डिफरेंट पावर. तो ये जो आपके उसमें मीडियम लो फ्लेम का पावर होता है ना, आप उस पे रखेंगे. ठीक है. All right, all right. And wheat flour has bran, so developing gluten is very difficult in whole wheat flour. Yes, so it is. That's why it takes longer for you to knead it. That's why you need to knead it for 3 to 5 minutes. And because it has
wheat bran in it. That is why they will not be as light as your all-purpose flour bagels. But don't worry, they do rise beautifully and still taste yum. Okay, तो ये फिर भी टेस्टी बनते हैं और राइज नहीं करेंगे जितना आपका ऑल पर्पस फ्लावर वाले करते हैं, लेकिन फिर भी अच्छे बनते हैं. सो इसको अब मैंने 1 मिनट के लिए पोच हो गया है, इसको मैं हल्के से फ्लिप कर दूंगी. ठीक है, सो आई एम फ्लिपिंग दीज केयरफुली. व्हाइल फ्लिपिंग बी वेरी केयरफुल कि आप फिर से बहुत आराम से इनको फ्लिप करोगे ताकि इनका जो बाहर से सरफेस है उस पर कोई डेंट ना आए. सो दैट इज नो डेंट इन योर आउटर सरफेस. सो दे आर ऑलमोस्ट डन. सिर्फ 1 मिनट के लिए और इनको मुझे पोच करने की जरूरत है. So this step, Moni, is very very important when we are making bagels. हम इसे avoid ही नहीं कर सकते हैं. अगर आप इसको skip कर दोगे तो वो bagel नहीं रहेगा. It will just become a ring shaped bread. So if you skip this step, it will not be a bagel and वो एक simple bread बनेगी ring shape की. और आप अगर try करना चाहते हो तो एक को ऐसे ही bake कर देना और बाकियों को पोच करना. आपको texture में difference साफ पता चलेगा. So if you want to know why we poach it and what difference it makes, you can try doing it. You can try that experiment. Okay, so ये 1 मिनट के लिए मेरा पोच हो चुका है. So I'm just poaching 2 of them. So I'll just take it out onto my counter, onto my sheet. तो ये sheet है मेरी, parchment paper से मैंने line कर दी है और इस पे मैं अब add कर रही हूँ अपने bagels को. और अब very very simple step, बहुत ही आसान सा स्टेप है. इसको मैं ब्रश करूंगी अपने सोया मिल्क से. सो आई एम ब्रशिंग इट विद सोया मिल्क. इफ यू वांट यू कैन ऐड नॉर्मल मिल्क और यू कैन गो ahead and brush it with some egg whites as well. Okay, इसको अब मैंने ब्रश कर लिया है. and now what I am doing is I'm just sprinkling some black and white sesame seeds on top. थोड़े से सफेद और काले तिल मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ और इन्हें बस पोच करने के बाद एकदम आपको बेक करने को डालना है. पर क्योंकि मेरे ओवन में ऑलरेडी बनाना ब्रेड बन रही है तो मुझे वेट करना पड़ेगा. मेरी बनाना ब्रेड बनेगी और फिर उसके बाद इनको बेक करूंगी. सो but you need to bake them immediately after they are ready at this stage. Okay, you don't need to keep them. आपको इसको बिल्कुल भी रेस्ट करने के लिए नहीं रखना है. इसी स्टेज पे आप फटाफट से उसको बेक करने के लिए डाल दोगे. ठीक है, so this is all about a process. तो इसको जब हम बेक करेंगे, ये बेक होंगे हमारे अराउंड 15 मिनट्स में बेक हो जाते हैं ये. तो तकरीबन 15 मिनट में ये आराम से बेक हो जाएंगे. अगर आप अपनी पीडीएफ खोल के देखेंगे तो इसको माइक्रोवेव में कैसे पकाना है, कढ़ाई में कैसे पकाना है, मैंने एक टेबल बना के दिया हुआ है, वो आप रेफर कर सकते हो. सो इफ यू वांट टू नो हाउ टू बेक इट इन अ माइक्रोवेव, कन्वेक्शन और इन अ कढ़ाई ओवर योर गैस, you can go ahead and look at that table which I've made and give it in your PDF. Okay, so अब फटाफट से बात कर लेते हैं हम अपनी सर्विंग एंड स्टोरेज की. तो जो मेरा ये रेडी लोफ बनेगा बनाना ब्रेड का, ये तकरीबन 450 ग्राम्स का बनेगा. एंड इसको मैं अच्छे से क्लिंग रैप में रैप करके या बटर पेपर में या ब्राउन पेपर में रैप करके अपने रेफ्रिजरेटर पे रख सकती हूँ तकरीबन 1 हफ्ते के लिए. सो इट विल कीप इन योर microwave, in your refrigerator for up to a week. When you have to sell it, you can either sell the whole, for packaging, you can either sell the whole loaf or you can cut it into slices and pack them individually and sell them. तो या तो आप पूरे के पूरे लोफ को बेच सकते हो या आप स्लाइसेस काट कर भी इसको सेल कर सकते हैं. और इनको आप सेल करोगे तकरीबन 150 to 180 rupees per loaf. So we will sell it for somewhere between 150 to 180 rupees. And packaging करने के लिए आप इसमें यूज कर सकते हो ब्राउन पेपर, क्लिंग पेपर, या आप इसको एक बॉक्स में डाल सकते हो. सो यू कैन ईदर पुट इट इन अ बॉक्स और रैप इट इन क्लिंग पेपर एंड ब्राउन पेपर. जो हमारा ये डो है, डो इसमें जो मेरे बेगल्स हैं, बेगल्स मुझे मिलेंगे अराउंड 8
मीडियम साइज्ड बेगल्स, अगर आप थोड़े से बड़े बेगल्स बनाओगे तो वो 6 बेगल्स बनेंगे इस डो में, ठीक है. So this is going to give me around 6 to 8 bagels. Then as per your storage, you can keep them in your refrigerator for up to a week, packed in a cling wrap or in a butter paper or in an airtight container. Airtight container में ये एक हफ्ते तक रेफ्रिजरेटर में रहेंगे, या आप इन्हें फ्रीज भी कर सकते हो. अच्छे से क्लिंग पेपर में रैप करा और फिर इनको फ्रीज कर दिया. यूज करने से पहले निकाला बाहर, डीफ्रॉस्ट करा और यूज कर लिया. So when you need to use the bagels, you just need to take them out, defrost and use them. They'll stay in your freezer for up to a month. आपके फ्रीजर में ये 1 महीने तक रह सकते हैं, और इन्हें आप इंडिविजुअली सेल करेंगे, और इंडिविजुअली सेलिंग प्राइस इनका तकरीबन होगा 60 to 80 रुपीज, 60 से 80 रुपए तक. और बाकी डिपेंड करेगा आप इसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हो. तो ऑब्वियसली इंग्रेडिएंट्स अगर आप थोड़े से महंगे वाले डाल रहे हो, तो चीज वगैरह डाल रहे हो, तो आपको इसका प्राइस थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा. सो यू नीड टू एडजस्ट द प्राइस एज पर द इंग्रेडिएंट्स दैट यू पुटिंग इन योर bagels. So that completes our process. We've discussed the replacements, the serving, storage, and pricing. So that's it from my side. Now if we have any queries, let's discuss those. Yes, absolutely. So guys, यहाँ पे हम लोग queries पूछने के लिए Zoom chat enable कर रहे हैं. So please अपना queries भेज दीजिए. You can just enable your chat over here. Ask up your queries. Okay. So Zarna ma'am has already written the whole question she had. To be honest. Okay. So yes. So ma'am, यहाँ पे हम लोगों ने PDF updated वाला भेजा है. We have sent the updated PDF. So please have a check with our admins as well. So the first question. अपडेट करके आपको मिल जाएगा उसमें इंग्रेडिएंट्स में एज वेल एज प्रोसेस में अपडेटेड प्रोसेस लिखा हुआ है विद फ्लैक्स सीड्स. यस. सो यहाँ पे जरना मैम का फर्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीग्रेन फ्लावर कंटेन्स कॉम्बिनेशन ऑफ विच फ्लावर एज पर यू? Ma'am, multigrain flours are available in the market with lots of flours. Some use bajra, soya, they put ragi in it, then you have your whole wheat in it, and you have your corn flour in it. So there's lots of options that are available. You can also make a gluten-free multigrain flour. So that's why I'm saying when you're buying a store-bought multigrain flour, just make sure आप उसके ingredients एक बार पढ़े, और उसमें whole wheat flour जरूर होना चाहिए, या मैदा आपका जरूर होना चाहिए उसमें, ताकि आपके डो में ग्लूटेन थोड़ा सा हो. नहीं तो आपको उसमें अलग से ग्लूटेन डालना पड़ेगा जो ग्लूटेन पाउडर मिलता है. तो वो यूज करने से फिर थोड़ा सा रेसिपी चेंज हो जाता है. तो माइट एज वेल यूज जिसमें ग्लूटेन है. All right. And the second question would be, with the use of shakkar and ripe banana, both the bread wouldn't be too sweet. Can we skip sugar and just use two ripe bananas? If you don't want to add the shakkar, you can definitely go ahead and skip it. It also at the end of the day, it depends on how sweet your bananas are. So definitely you can go ahead and skip the shakkar. If you like it less sweet, then yeah, go ahead. All right. And the third question would be, why have we not used baking soda in our bagels? यहाँ पे bagels में baking soda क्यों नहीं use किया है? मैम, हमने अपने बेकिंग सोडास को यीस्ट के साथ राइज करा है, एंड हमने जब उनको बॉईल करा है तब उसमें हमने बेकिंग सोडा डाला है. सो आई हैव यूज्ड यीस्ट. If you want, you can go ahead and use baking soda or baking powder to knead your dough, and then rise it and then use it. So you can, bagels can be made with baking soda and powder, or they can be made with yeast as well. I like the texture and the finish and the flavor that yeast gives, so that's why I've used yeast. All right. And the fourth question would be, what would be the recipe for herb bagels without yeast? Ma'am, usme it will be completely different because the amount of water, because in that I will have to add something to activate the baking soda also. So the recipe will be very different. That will be an entirely different recipe. If you want, then I can message it to you in the WhatsApp group, because then the recipe will be very different. This is with yeast, that will be with baking powder, and the proportion of everything changes then. All right, all right. And if you're using yeast, then how it can be called vegan? अगर हम लोग यहाँ पे yeast use कर रहे हैं तो vegan कैसे बोल सकते हैं?
Ma'am, because this yeast that I'm using, this is a vegan yeast that I have got. If you do not want to use this vegan yeast, then you can definitely go ahead, because this yeast is basically derived from by kind of sourdough type starter जो होता है, वो है ये. So that is why it is a vegan recipe. It is not a animal derived yeast. ठीक है. And for bagels, if we are not making vegan version and want to make eggless, then how to replace egg white and almond or soya milk? यहाँ पे अगर bagels को you can go do ahead and without brush it with simple milk. ओके ओके. सो गाइज, यहाँ पे अगर आपको वेगन वर्जन नहीं चाहिए बेगल का, तो आप उसके ऊपर ब्रश कर सकते हैं मिल्क के साथ. एंड कैन वी मेक नॉर्मल रेगुलर ब्रेड विथ रेसिपी ऑफ बनाना वॉलनट ब्रेड बाय स्किपिंग द वॉलनट्स? क्या यहाँ पे हम नॉर्मल रेगुलर ब्रेड यूज कर सकते हैं? आई मीन बना सकते हैं बनाना और जो वॉलनट स्किप करके? नहीं वो नहीं बनेगा, क्योंकि then you'll have to add a different kind of moisture to it. You'll have to increase. See, every recipe has ingredients for a purpose. हर रेसिपी में एक ingredient डालने का एक पर्पस होता है, और कभी कभी वो एक ही चीज का डुअल पर्पस होता है. जैसे आप आगे जाके देखेंगे रेसिपीज में होता है, अगर आप एक चीज को स्किप कर दोगे तो वो रेसिपी ही चेंज हो जाती है. इट इज एन एंटायरली डिफरेंट रेसिपी. तो अगर आप रिप्लेसमेंट की कोशिश कर रहे हो ब्रेड बनाने के लिए, बनाना ब्रेड से बनाना निकाल दोगे, वॉलनट निकाल दोगे, तो वो बचा क्या उससे. सो प्लीज गाइस डोंट डू दिस. रेसिपीज के साथ आप ऐसा मत करिए, बिकॉज दोज आर एंटायरली डिफरेंट रेसिपीज. आप ऐसे करके रेसिपी के बिल्कुल जो मेन उसका एसेंस आप वो निकाल दोगे, तो रेसिपी तो फिर इट वोंट वर्क. एंड मैं अगर आपको बोल दूं कि हाँ वो वर्क कर जाएगा, देन इट इज रॉन्ग ऑन माय पार्ट. सो प्लीज वो नहीं कर सकते आप. ऑल राइट. एंड ज्योति मैम्स क्वेरीज, हाउ टू defrost? यहाँ पे defrost कैसे करें? मैम डिफ्रॉस्ट करने के लिए या तो आप उसको रूम टेम्परेचर में निकाल के रख दीजिए, या माइक्रोवेव में आपके जो डिफ्रॉस्ट फंक्शन होता है आप वो भी कर सकते हो. सो देयर आर टू वेज, ईदर thaw it at room temperature or you can use your microwave to defrost it. All right. And Rashmi ma'am's queries, can we slow proof bagel dough? क्या हम slow proof कर सकते हैं bagel dough को? Ma'am, this particular recipe that we've used, generally it activates very, very quickly. If you know how to go ahead and slow proof it, then you can do. But हाँ, slow proof करते वक्त थोड़ा सा recipe different होगा आपका. The amount of rising agent that you put is a little less, because then it proofs over time. So if you want, you can go ahead and alter it accordingly. Okay. And Harshal ma'am's query is, why did we use olive oil? यहाँ पे olive oil क्यों use किया है? Because it's healthy. If you don't want to use olive oil, you can go ahead and use any other oil. Okay. Because see, oil basically I need in it to give it that moisture and a little bit of fat. It is a vegan recipe. It's not a fat-free recipe. ठीक है. And Kavita ma'am's query is, bagel में cheese कैसे add करें? How to add cheese in bagel? While you're kneading the dough, ma'am, instead of adding any other flavoring, हम इसमें उस वक्त चीज डाल देंगे. चीज को बस ग्रेट करिए और इसमें डाल दीजिए. You don't need to like reduce any other ingredient. Just add cheese into your dough. आटे में गूंदते वक्त डाल दीजिए, कद्दूकस करके. ठीक है. So Hema ma'am's query is, from where can we buy all these products? यहाँ पे सारी products कहाँ से खरीदें? मैम, most of my products या तो मैं बिग बास्केट से लेती हूँ या तो Amazon से लेती हूँ. So these are the two places from where I get all my ingredients. All right. So guys, for now we would be ending the session, but before that, let me ask Chef Divya over here, what are we going to learn on tomorrow's gluten-free special? So यहाँ पे कल के gluten-free special में क्या सीखने वाले हैं? तो मोनी, कल हम सीखेंगे एप्पल पाई क्रम्बल बार्स, और हम सीखने वाले हैं कीनुआ कपकेक्स. Cupcakes हम बोल रहे हैं, but basically they are muffins. So we are going to learn quinoa cupcakes and apple pie crumble bars. नाम बहुत decadent है इनका, but very, very healthy. All right. So guys, we have a good news over here, a special offer where you can avail our free face yoga course today by
having the booking of makeup advance done today. So जिनको भी यहाँ पे makeup advance की booking करनी है तो उनको मिलेगा फ्री फेस योगा के 5 दिनों का कोर्स जो स्टार्ट हो रहा है 28 जुलाई से, जहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा बेसिक्स ऑफ योगा, पावर ऑफ योगा, 5 easy face yoga exercise for forehead, upper lips, jawline, mid face, lips, and skin benefits of yoga. एंड यहाँ पे ट्रीटमेंट भी किया जाएगा फेस योगा से कि फेशियल योगा में एक्ने, स्कार्स, पिगमेंटेशन को कैसे ट्रीट करते हैं। सो इन 5 दिन का कोर्स आपको मुफ्त में मिलेगा, वो भी आज के बुकिंग मेकअप एडवांस कोर्स के लिए। सो जाइए आप बुक कीजिए और ये फ्री कोर्स आप अवेल कीजिए। सो प्लीज गो एंड बुक आवर मेकअप एडवांस कोर्स सो दैट you could avail the free course as well. So, with this, we come to our end of our session. So, the queries which we have missed, please send it in AMA timing given in group. AMA is basically where you can ask your queries to Chef Divya in the group, or you can send it in our query form, which we will be sending in the group after the session. जो queries मैंने miss किया है, please AMA timing में भेज दीजिए group में. AMA में आप अपने queries पूछ सकते हैं शेफ दिव्या को ग्रुप में, या फिर आप क्वेरी फॉर्म में भी सेंड कर सकते हैं जो ग्रुप में भेजेंगे सेशन खत्म होने के बाद। सो वी विल बी सेंडिंग रिकॉर्डिंग्स आफ्टर 30 मिनट्स इन द ग्रुप। हम रिकॉर्डिंग्स भेजेंगे ग्रुप में 30 मिनट के बाद। एंड अलीपो केयर्स अबाउट एवरीवन्स प्राइवेसी, so do not personally contact any participant and instructor or we need to take strict action. अलीपो केयर करते हैं आप सभी के प्राइवेसी, इसीलिए किसी भी पार्टिसिपेंट या इंस्ट्रक्टर को पर्सनली कांटेक्ट मत कीजिए, नहीं तो हमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। एंड प्लीज डू सेंड योर फीडबैक इन आवर फीडबैक फॉर्म गाइस, आपके फीडबैक जरूर भेजिए हमारे फीडबैक फॉर्म में। And good news for everyone who are using Android over here. We have our Alipo app in Play Store. Please log in through your WhatsApp mobile number and get full-time access of recording without downloading. And later on, you can download PDF and certificate as well. So खुशखबरी हम सभी के लिए जो है Android users, क्योंकि यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं अलीपो ऐप प्ले स्टोर से, जहाँ पे लॉग इन कीजिएगा व्हाट्सएप नंबर से और आपको मिलेगा फुल टाइम एक्सेस रिकॉर्डिंग, जहां पे आपको रिकॉर्डिंग्स डाउनलोड नहीं करने पड़ेंगे और बाद में सिर्फ पीडीएफ एंड सर्टिफिकेट ही डाउनलोड करना पड़ेगा। So thank you so much, Chef Divya, for such a detailed explanation, and thank you everyone for attending our session. So let's meet tomorrow at same time. So have a great evening ahead. चलिए कल मिलते हैं सेम टाइम में. So bye everyone. Bye Chef Divya. Bye everyone. Bye.